respiration. Okay, in the previous class we have talked about the two centers which are present for the regulation of respiration, right? The one is the rhythmic center and the second one is the pneumotaxic center. Now the respiration can also be regulated by the chemical changes which is occur inside the body, right? That chemical changes will regulated or it is sensed by chemosensitive area. So that is a chemosensitive area or a region which is present. कहाँ पे प्रेजेंट है? उसका लोकेशन है, it is besides the primary respiratory regulatory center. Which is the primary respiratory regulatory center? Brain. Wow. Which is the primary respiratory center. Very nice. It is the respiratory rhythm center. So respiratory rhythm center जो है, तो brain के अंदर ही present है. It is there in the brain. We know that everything is under the neural control. तो brain आंसर कैसे हो सकता है? उसमें particular portion की बात हो रही है, right? So brain के पास जो respiratory rhythm center है, उसी के बाजू में एक ऐसा sensitive area है which senses the chemical changes occur in the blood. Okay. So this center, which is we call it as chemosensitive. So where it is present? It is besides the primary respiratory. जो primary respiration को क्या करता है? Convert primarily जो responsible है for the regulation of respiration. तो यहाँ पे ये हमारा extra word है, that is the primary respiratory center. इसको हम क्या कहते हैं? This is referred to as a rhythm center. So it is referred to as the rhythm center. Okay, so which is just beside the respiratory rhythm center. Now what the chemosensitive area will do? So this chemosensitive area, what it will do? It will recognize the concentration of carbon dioxide and H plus. वो कार्बन डाइऑक्साइड और H प्लस आयन जो है उसके कॉन्सेंट्रेशन को ब्लड के अंदर रिकॉग्नाइज कर लेता है. जब वो रिकॉग्नाइज कर लेता है तो वी नो दैट कि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड मोर इन अमाउंट, राइट? फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सीजन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इन अ more amount, right? So if there is a more amount of the carbon dioxide and the H plus concentration in the blood, which will leads to the less efficiency of hemoglobin to bind with the oxygen. Got it? So which will lead to what? Which will be harming us, right? तो क्या होता है? तो ये दोनों जो सेंटेंस थे जो हमने अर्लियर क्लास में डिस्कस किए वो तो रेगुलेट करते ही हैं. उसके साथ साथ जैसे ही इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड H plus, so CO2 concentration and H plus concentration in the blood is detected by chemosensitive area. Okay, or the chemosensitive region. तो ये chemosensitive area क्या काम करेगा? तो CO2 and H plus का concentration अगर बढ़ गया तो उस चीज को वो सेंस कर लेता है. Then what it will do? It will send. So chemosensitive area, after that the chemosensitive area transfer that information to whom? किसको भेजेगा? किसको भेजेगा बताओ? Right, rhythmic center, क्योंकि primary center control तो कौन करेगा? Rhythm center करेगा, right? So chemosensitive area transfer that information for concentration of CO2 and H plus to the rhythm center. And rhythm center को कहता है कि now you have to maintain the necessary or you have to do the necessary actions so the CO2 and carbon dioxide H plus level will be reduced or a balance. समझ में आ गई बात? So over here we can say कि chemosensitive area transfer that information for concentration of the H plus and CO2 to the rhythm center to make necessary adjustment. For the reduction of this concentration. Okay.
these gases or the components concentration. समझ में आ गई बात? तो कीमोसेंसिटिव ऐसे इसको ट्रांसफर करेगा. Now इसके अलावा there is another centers which are there which is also detecting the carbon dioxide level in our body. So one that is aortic arch and दूसरा वाला है आपका carotid arteries. So one is the aortic arch. Aortic arch क्या है? जो आर्टरी है वो आर्टरी जब ये है आपका लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल. तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड ट्रांसफर होता है तो यहाँ पे ये पूरा ऑर्टा कहलाता है, इसको एओर्टा कहते हैं हम लोग, राइट. तो ये जो पूरा आर्क बन रहा है ना, ये पूरा एक आर्क बनेगा इसमें जो हार्ट से बाहर आ रहा है, ये पूरा एक आर्क है, राइट. तो दिस कैन आल्सो डिटेक्ट द चेंजेस इन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H+. समझ में आ रही बात? क्या करेंगे? ब्लड के अंदर अगर CO2 और H+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है तो देयर इज another area that is the aortic arch can also detect these changes CO2 and H+. करेक्ट. और दूसरा है कैरोटिड आर्टरीज. कैरोटिड आर्टरीज, अच्छा अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हार्ट इज प्रोवाइडिंग द ब्लड टू द होल बॉडी पार्ट्स, बट हु विल प्रोवाइड द ब्लड टू हार्ट? आर्टरीज है. तो जैसे पूरे ब्लड के टिश्यूज के अंदर एयर ऑक्सीजन पास हो रहा है तो हार्ट को खुद को भी तो चाहिए होगा ना. कहीं पे हमने ये नहीं पढ़ा कि लेफ्ट एट्रियम में से ब्लड ले लिया, राइट एट्रियम में से ले लिया, ऐसा कभी पढ़ा हमने हार्ट के बारे में? नो. तो जो हार्ट है उसके आउटर सरफेस पे बड़ी सी आर्टरी होती है जिसको कहा जाता है कैरोटिड आर्टरी, जो सप्लाई करती है ब्लड टू द हार्ट. जो किसको सप्लाई करेगी? ब्लड टू द हार्ट, मतलब कि ब्लड को अपने खुद के लिए वो प्रोवाइड करेगी एयर, राइट. ब्लड को नहीं, हार्ट को अपने खुद के यूटिलाइज के लिए इट विल प्रोवाइडिंग दैट पर्टिकुलर ब्लड टू इट. ओके, समझ में आ रही है बात? जैसे हार्ट पूरे बॉडी को सर्कुलेट करने में, ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करेगा, पर हार्ट इटसेल्फ रिक्वायर ब्लड व्हिच इज गेट ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ द कैरोटिड आर्टरीज. जो अगर हार्ट का डायग्राम हम देखेंगे तो बाहर के साइड में हार्ट के ऊपर बहुत सारी आर्टरीज लगी होती है, उसमें से सबसे बड़ी वाली होती है उसे कहा जाता है कैरोटिड आर्टरी. So it can also detect the concentration of CO2 and H+ in the blood. So when it detected, after that what it will do? It will send the message to the respiratory rhythm center, and rhythm center will do the necessary changes for elimination of H+ and CO2. So neighbors, so aortic arch and carotid artery are also sensitive to the CO2 and H+ concentration. Right? Transferred the information to the rhythm center. And rhythm center will make the necessary adjustment. To make necessary adjustment. Okay, fine. Now over here, this chemosensitive area is less sensitive. यहाँ पे ये वर्ड ध्यान देना है. देखो, what is the over here? Unprotected. It is a detected, right? So detected को slash करके write it down. Sensitive as well. Sensitive. So it is sensitive to the CO concentration of H+ concentration in the blood, which is detected by the chemosensitive area. तो ये वर्ड दिख रहा है आपको यहाँ पे, सेंसिटिव, राइट. तो केमिकल सेंसिटिव एरिया, इनके कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो इट गेट इजीली सेंस्ड बाय दिस chemosensitive area, and then the message will be sent to the rhythm center. Okay, now this chemosensitive area is very less sensitive to the level of
ऑक्सीजन, या तो लेवल ऑफ लिख सकते हैं और वी कैन राइट इट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. सो वी कैन से दैट यहाँ पे एक सिंगल लाइन दी है एनसीईआरटी के अंदर, level of oxygen is insignificant for respiration regulation or regulation of respiration. So ये why the O2 is very insignificant for the regulation of the respiration, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रहा है. अगर ऑक्सीजन के अगेंस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो उसको रेगुलेट कर दे रहे हैं, तो ऑक्सीजन की वहाँ पे कोई जरूरत लगेगी नहीं, राइट. वो अपने आप बैलेंस है. So over here we can say that the chemosensitive area is less sensitive to the level of or the concentration of O2. So O2 will be the less or will be the insignificant for O2 नहीं, O2 concentration or concentration of O2 will be less significant, insignificant for or insignificant for regulation of respiration. So oxygen का लेवल बढ़ेगा घटेगा कोई फर्क पड़ेगा नहीं. It is not involved for the regulation of respiration. ठीक है, चलो quickly write it down, then we'll move to the disease. Last topic of the chapter, that is the respiratory disorders. Now respiratory disorders, that means which is affecting to your respiratory system, कि आपकी respiratory system किससे कैसे affect हो सकती है. There are so many disorders for the respiration, but we are going to discuss only 3 over here. The one which is nowadays going on and due to that we all are suffering, that is the COVID, right? It is also a respiratory disorder, right? So over here let's see the first, it is asthma, right? अब अस्थमा जो है अगर गूगल करेंगे तो you can get it asthma. क्या कहेंगे? asthma. They pronounce it like asthma, but we Indians pronounce it as asthma, right? Okay. Then it is emphysema, and the third one is the occupational disorder. So this is the most common respiratory disorder which is seen in an individual. क्यों ऐसा होता है? तो let's see. It is why it is occur. What is the reason behind it? Some people get affected due to the allergies of certain things. Allergies क्या होती है? Do you know what is allergies? Yes. Allergies. What? Body's reaction to a substance. Okay, body's reaction towards the substance, right? There are certain substance which is not accepted by the body, right? अब जैसे कि most probably जो अस्थमा है उसके what is the reaction seen और किसके अगेंस्ट में रिएक्शन देखने को मिलता है, तो पर्सन की जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, राइट. द इन्फ्लेमेशन इज ब्रोंकियोल. किसके अंदर? ब्रोंकियोल्स. जो ब्रोंकियोल्स होते हैं इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना. इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, सूज जाता है, राइट, तो दैट पर्टिकुलर एरिया. सो द एयर कैपेसिटी जो होती है वो डिफ्यूज नहीं हो पाती प्रॉपर्ली. सो द पर्सन विल हैव अ व्हीजिंग टाइप. जबरदस्ती एयर लेते हैं, देखा है जिनको अस्थमैटिक अटैक आता है, जैसे घबरा जाते हैं, जिनमें अटैक आता है अस्थमा का, उनके अंदर क्या होता है कि दे स्टार्टेड ब्रीदिंग वेरी फास्ट, साउंड करके ब्रीथ लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? व्हीजिंग. व्हाट इज इट वर्ड? व्हीजिंग. उसे कहा जाता है व्हीजिंग, राइट. तो व्हीजिंग होने लगता है. अब रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू हैव अस्थमा? क्यों होता है? बिकॉज ड्यू टू सर्टेन एलर्जीज, allergies of certain substance, certain substance like pollen, right? It's a pollen grain. So pollen grain है which is there for those people who are living nearby, the very nearby the garden where जो florist जहाँ पे फ्लावर ज्यादा है, राइट, वहाँ पे पोलन जो है उसकी अमाउंट ज्यादा है एयर के अंदर. सो इट कंटिन्यूअसली कम इनटू द रेस्पिरेशन. सो द सर्टेन पीपल गेट एलर्जिक, बिकम एलर्जिक टुवर्ड्स पोलन ग्रेन. अब पोलन ग्रेन एयर के अंदर जाएगी तो व्हाट विल बी हैपन? कंटिन्यूअसली स्नीज होने लगेगा, राइट. देन इट विल बी क्रिएटिंग व्हीजिंग. जबरदस्ती हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रीथ लेना पड़ेगा, इसके अंदर सांस लेनी पड़ेगी. तो पोलन ग्रेन है. और क्या है? The most common one, that is dust. Some people get affected
बाय डस्ट, जैसे कि जाले लगे हुए होते हैं उसको डस्टिंग करते हैं तो स्टार्टेड स्नीजिंग, राइट। आई हैव सीन सर्टेन पीपल लाइक दे कैन स्नीज एट वन टाइम 100 टाइम्स, एक ही बार में 100 बार छींक सकते हैं। क्यों? डस्ट की एलर्जी होगी, राइट। किसी को क्या होता है डस्ट की वजह से क्या होने लगता है, दे हैव कोल्ड, सीधा कोल्ड हो जाएगा, दैट इज आल्सो वन ऑफ द एलर्जी, राइट। देन सम पीपल हैव द एलर्जी ऑफ फ्रेग्रेंस, जैसे लक्ष्मण सर हमारे, ही इज नॉट एबल टू टेक द हाई स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, राइट, एनी परफ्यूम, व्हाई? बिकॉज़ ही स्टार्टेड हेडेक, राइट। तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द एलर्जिक रिएक्शन वी कैन से। तो डस्ट से होगा, देन स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस हम लिख सकते हैं यहाँ पे, पर नहीं लिखो तो भी चलेगा। देन सर्टेन पीपल हैव एलर्जी ऑफ दिस, एनिमल्स होते हैं जिनके घर में डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, उनके जो फर है, हेयर्स है, दैट इज आल्सो दे आर आल्सो रिमूविंग द हेयर्स ओवर हियर एंड देयर, राइट। सो सम पीपल गेट एलर्जी बिकॉज़ टू द डेंडर ऑफ एनिमल्स और द किटन्स। जो किटन्स होते हैं, बिल्ली के बच्चे, बिल्ली है और डॉग्स है, उनके जो डेंडर का मतलब होता है हेयर, एंड डेंड्रफ, जो डेंड्रफ होते हैं हमारे जैसे डेंड्रफ होते हैं, उनकी भी स्किन के ऊपर स्केली लीजन्स हो जाते हैं, तो दैट इज डेंड्रफ। तो वी कैन से दैट द डेंड्रफ, डेंजर नहीं है, डेंडर, सो डेंडर ऑफ एनिमल्स, राइट। तो एनिमल्स के जो हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, दैट इज आल्सो गेट अफेक्टेड। यहाँ पे डस्ट एंड माइट्स, छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं जिसको माइट्स कहते हैं, दे आर आल्सो देयर व्हिच विल बी लीड्स टू द एलर्जीज। ओके, नाउ दिस इज, तो एलर्जिक रिएक्शन की वजह से क्या होता है, अस्थमा होता है। अब अस्थमा में होता क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम अराइज होती है? So it leads to our inflammation of bronchi. Cause क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगी इफेक्ट, तो इफेक्ट हो जाएगी उसकी इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो है वो इन्फ्लेम हो जाते हैं, सूज जाते हैं, मतलब कि सपोज दिस इज अ ब्रोंकाई, तो ये ब्रोंकाई का लेयर ऐसे ब्रॉडन अप हो जाएगा, सूज जाएगा, राइट, इट विल बिकम swollen, right? Then after that so what will happen? Yes, क्या नहीं, इसका swallow का मतलब इसकी जो वॉल है, ये पूरा का पूरा जो है, swallow का मतलब क्या होता है, फूल जाना। अब फूल जाता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके मसल्स डैमेज हो गए। आपको जैसे मोच लगती है, स्प्रेन आता है ना, तो जब स्प्रेन आता है तो सबसे पहले इफेक्ट क्या दिखेगी, सूजन आ जाएगी, राइट। सूजन आ जाना मतलब वहां के मसल्स हो गए डैमेज, तो उसकी जो एयर कैपेसिटी है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। क्या मैंने बताया यहाँ पे कि ये इसका पाथ है, राइट, तो ये पाथ के ऊपर पूरा का पूरा सूजन हो जाएगा, राइट, ये पूरा सूज जाएगा, तो उसकी जो एफिशिएंसी है मसल्स की, कॉन्ट्रैक्शन की, दैट विल बी रिड्यूसेस। वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, right? So over here inflammation of bronchi. Now what will be happen, तो इसकी इफेक्ट क्या देखने को मिलती है, तो इंडिविजुअल सीन wheezing, सिम्टम्स क्या दिखेंगे, wheezing, right, wheezing during respiration, ठीक है, wheezing मतलब जोर जोर से सांस लेना। और लिखो ये, do I need to write it that, what is wheezing? Okay, then have you seen that these people, those who are affected by asthma, they have a pump, right, और जैसे इंस्टेंट पंप को स्प्रे करेंगे they will be normal, right। तो इसमें ऐसा क्या होता है जिससे नॉर्मल हो जाएंगे, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होगा, नो बेटा, उसके अंदर होगा मेडिसिन। जो मेडिसिन, जो पंप होता है, पंप के अंदर होती है मेडिसिन, वो मेडिसिन को जैसे ही पंप करेंगे इट गेट कन्वर्टेड टू द एरोसोल्स। एरोसोल्स क्या होते हैं, हाँ, एरोसोल्स क्या होते हैं, फास्ट ऑक्सीजन बनाते हैं। परफ्यूम क्या है आपका, क्यों एरोसोल है, उसमें लिक्विड भी है और एरोसोल्स का काम करते हैं ना। तो वो जो मेडिसिन होती है या तो इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, वो माउथ के अंदर जाएगी जिससे उसकी सीधा, इट इज अ एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन, कौन सी, एंटी हिस्टामाइन। किसी को भी एलर्जी हुई हो ना,
सब उसको एंटीहिस्टामाइन दिया जाता है, स्टीरॉइड दिया जाता है, जिससे क्या होता है, एलर्जी कम हो जाती है, राइट। तो दैट टैबलेट्स होती है, उस टैबलेट्स को वो एरोसोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे भी होता है। और एक होता है ड्राई पंप। ड्राई पंप में क्या होगा, जो टैबलेट है उसको पाउडर फॉर्म में वो कन्वर्ट करेगा एंड देन इट विल बी डायरेक्टली एंटर टू थ्रू द माउथ सेंसिटिव, इट विल बी डायरेक्टली रेगुलेटेड दैट रेस्पिरेशन, ओके। तो वो पंप के अंदर मेडिसिन होती है, वो पंप क्या खाली काम करता है, उसको कन्वर्ट करता है या तो एरोसोल में या तो पाउडर के अंदर, ठीक है। सो लाइक दैट, ओके फाइन, समझ में आ गया अस्थमा, ठीक है। तो कोई लोग तो है नहीं है एलर्जिक इस सारी चीजों से, नहीं। जिसमें अस्थमा में मोस्टली क्या होगा, द रेस्पिरेशन की जो इनहेलेशन की कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस। अभी मॉर्निंग होती है, सुबह सुबह ठंडी में जो मिस्ट गिरती है उससे भी कई लोग अफेक्टेड हो जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू टेक एयर। इन लोगों को अस्थमैटिक पीपल जो होते हैं, दे आर नॉट एबल टू गो अप हाई, ज्यादा नहीं जा सकते। रीजन, एयर की इंटेंसिटी वहां पे एकदम पतली एयर है, दैट इज हाई प्रेशर है, तो वो दे आर नॉट एबल टू टेक इट, राइट। उनको मोस्ट प्रोबेबली जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, जो विग्रस एक्टिविटीज होती है, उसके लिए भी उन्हें मना किया जाता है, ओके फाइन। नाउ एम्फीसेमा, तो एम्फीसेमा क्या है, एम्फीसेमा इज अगर ड्यू टू द सिगरेट स्मोकिंग, जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं, ड्यू टू दैट, so it is a chronic disorder। chronic का मतलब क्या होता है, so persist for long period of time, ठीक है, बहुत लॉन्ग तक चले रहेगा ये, ठीक है, it remain for long period of time, so it is occur due to cigarette smoking। स्मोक कर लेता है, ओहो, तो इफेक्ट क्या है इसकी, तो इफेक्ट होता है इसका, रिड्यूसेस द रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, जो एल्वेओलाई है उसकी रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। गैसेस है उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसकी अमाउंट ज्यादा रहती है, इसके लिए सिगरेट स्मोकिंग इज हार्मफुल। बट उसके बोर्ड के ऊपर लिखा होता है स्टिल दोज हु हैव टू स्मोक दे विल स्मोक, राइट। क्या एडिक्शन, या इट इज वन टाइप ऑफ एडिक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ निकोटिन, just present in smoking। Disorder, what is will like due to the job, right, due to the job मतलब कि कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग पर्टिकुलर जॉब्स करते हैं, जैसे कि some people are in a mining, right, माइंस कर रहे हैं, माइनिंग के अंदर है, ये लोग सारे मटेरियल्स को निकाल रहे हैं, those who are in a cement industries, right, packing of tobacco as well, then bakery, is it bakery से कोई होगा, हार्मफुल गैसेस इंडस्ट्रीज, ओके, और क्या हो सकता है, मेडिसिनल, हाँ दैट विल कम इनटू दैट कैटेगरी। और क्या हो सकता है, किसको हो सकता है, और ये डिजीज रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ सकती है, क्लोथ्स टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, क्लोथ्स फाइबर इंडस्ट्रीज, राइट, जहाँ पे फाइबर्स बनते हैं ना, पूरे कपड़े बनते हैं, राइट, तो उसके जो छोटे छोटे फाइबर्स है, इट इज ऑल्सो इन एयर, राइट, तो फाइबर इंडस्ट्रीज आर देयर, certain glass industries, उसमें भी छोटे particles हैं, right, so that certain industries will those people who are continuously working in that industries, they also get affected by this certain types of factors, जो भी factors हैं वहाँ पे, clothes है तो उसके fibers हैं, textiles है उसकी dyes है, right, then ये chemicals हैं, certain chemicals are there, so that due to that their respiratory capacity reduces and leads to the certain diseases in them, जिसको हम कहते हैं occupational disorders, कि उनके occupation की वजह से वहाँ पे जो disease उन्हें हो रही है उन्हें occupational disorders है, जहाँ पे ये सीमेंट के पत्थर है उसको कट कर रहे हैं, then अपने माउंटेन्स को ब्रेक कर रहे हैं, राइट, तो ये सर्टेन उससे डस्ट पार्टिकल्स और सारे के सारे एटमॉस्फेयर में आएंगे और वो लोग कंटिन्यूअसली वहीं पे कांटेक्ट में हैं,
right? So which will lead to certain diseases जिसको हम occupational disorders कहते हैं. तो what is occupational disorder we can say? So diseases or disorder due to certain occupations like mining, the cement industries, working in a cement industry, then textile, then fiber industries, right? Certain chemical industries. Thermal power plant in this. No, thermal में नहीं होगा. मैम बिकॉज वहाँ पे तो मतलब जो पेट्रोल फूल होता है उसको जला के एनर्जी बहुत मतलब उसमें थर्मल पावर के अंदर कोई रहता नहीं है एकदम अंदर, या डायरेक्टली नॉट इन कॉन्टैक्ट, वो सब काम अलग से हो रहा है. तो बहुत सारे लोग उसमें नहीं, जैसे माइनिंग में सब अंदर है, ठीक है, जिसको कंटिन्यूअसली दे आर यूटिलाइजिंग यूजिंग दे आर डिगिंग, ये सारा काम कर रहे हैं, तो उनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ये आ रहा है ना. सो सर्टेन थिंग्स आर देयर, द फाइबर in your NCERT it is used only for the fibrosis. So persons those who are working, in this industry are more affected. Okay, वो लोग ज़्यादा affected होते हैं. So उसमें से एक disease दी है fibrosis is the most common occupational disorder. Fibrosis is the most common occupational disorder. Fibrosis क्या है? The fibers, those who are working in the fiber industries, where the smaller particles are in the air, क्योंकि they are in light, they are बहुत light होते हैं, जो हमारे ये जो कपड़े बनते हैं, then ये आपके normal nylons होते हैं, right? सारे different materials, silk हैं, उन सब के particles air में present होंगे, and everybody is coming in contact every day, so that will be continuously going. अब हम ये तो कर नहीं सकते, so what can be the measures? What can be the measures for that? Mask, right? So now do you know that कि nowadays we are applying mask, हम मास्क अप्लाई कर रहे हैं, है ना? So जो कॉमन डिजीज की सबको, जैसे कि नॉर्मली लोगों को कोल्ड हो रहा था, नॉर्मली पीपल गेट अफेक्टेड बाय सर्टेन एलर्जीज, उसका रेट क्या हो गया है, राइट? तो मास्क इज गुड, इफ यू आर कोविड इज ओवर स्टिल यू आर वेयरिंग अ मास्क, दैट इज अ गुड थिंग, राइट? पीपल विल नॉट गेट अफेक्टेड, राइट? ज़्यादा पहनना नहीं चाहिए. क्या कह रहे हो? ज़्यादा इसको ज़्यादा नहीं पहनना चाहिए. हाँ, ज़्यादा तो पहनना नहीं है हमें, पर अगेन अगर ज़्यादा पूरे दिन पहन के रखेंगे तो इम्यूनिटी भी हम लोग डेवलप नहीं कर पाएंगे. थोड़ा सा एक्सपोजर में होना जरूरी है, और थोड़ा डजंट मीन कि वी आर इन एवरी टाइम. ओके, सो हियर fibrosis is the most common occupational disorders which will block the alveolus. जो alveoli होती है उसके अंदर ये पूरा डिपोजिट हो जाएंगे, तो जो डिफ्यूजन रेट है that will be reduced. Okay, so then so can be prevented. Prevention क्या है? Prevention wearing of मास्क. so wearing of mask when people are working in this certain industries they need to wear a mask. फिर आप लोगों ने ये भी देखा होगा जो कलर काम कर रहे हैं ना घर पर, so पेंटिंग का काम कर रहे हैं, तो they need to just first clear the walls, right? So they are also get affected by that particular line which is there, right? So this type of diseases can be occurred due to the we can say that it can be included in the respiratory disorders. Okay, fine. Wait. Now
Write it down the fourth one. Write it down the fourth one. That is COVID-19. Yes. She's not here. That. Fourth disease is COVID-19. Okay. COVID-19 is going on, right? What you have to do is, you have to find it out. Cause of COVID-19, okay? Write it down. Cause क्या है उसका? Second, how it spread. With the health context. Okay? Initially you write it in a continuous manner. So if you write more and more details, you'll not get space if you leave one line. Yeah, according to you, leave it one or two lines. Here you need only one line. Here you can be having the two lines. Okay? Third one, how it spread. Then what are the symptoms? Right? Then after the symptoms, treatment or treatment. If you will not write treatment, that is also fine. But prevention, how can we prevent it? Okay, that is your homework that you have to write it. Fine, tomorrow I will check that. Cause, how it spread, symptoms and prevention. Okay, if it is having another strain, you can write it as strain. Or is it worldwide spreaded, or does it have a vaccine? Okay, that vaccine name also you have to write it. One which is produced by the India and the second one which is produced by the other. Right? What? How? But Yeah. So